میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کنیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آج خواتین کو اگر کوئی واٹس ایپ کر دے یا فیس بک پر یہ خبر پھیل جائے کہ مصیبت آنے والی ہے، تارے آپس میں ٹکرانے والے ہیں، اس لیے تیل صدقہ کرو، آٹا صدقہ کرو، پیسے صدقہ کرو، تو یقیناً میں پوری امید کرتا ہوں کہ میری بہنیں یقیناً جو ہے اپنے گھروں کا آٹا نکال کر بانٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گی، اپنے گھروں سے تیل کے ڈبے تقسیم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گی۔ اسی طریقے سے بہت ساری خواتین اپنے پیسے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عورتیں مصیبتوں سے بہت ڈرتی ہیں، عورتیں مشکلوں سے بہت ڈرتی ہیں۔ اگر کوئی عام بازاری افواہ بھی اڑ جائے کہ صدقہ کرو مصیبت آنے والی ہے، صدقہ کرو تکلیف آنے والی ہے، تو عورتیں صدقہ کرنے لگ جاتی ہیں، حالانکہ ان افواہوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، ان بازاری باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، واٹس ایپ پر بازاری باتیں گھوم جائے، فیس بک پر بازاری باتیں گھوم جائے، یا کوئی ٹی وی پر آ کر کے کہہ دے کہ مصیبت آنے والی ہے، تکلیف آنے والی ہے، سنیچر کے دن یہ ہونے والا ہے، اتوار کے دن وہ ہونے والا ہے، جمعرات کے دن ایسا ہونے والا ہے، تو عورتیں ڈرتی ہے، کبھی آیت کریمہ کا ختم بھی کرانے لگتی ہے، کبھی درود شریف کی محفلیں بھی کرانے لگتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں، آپ نے کسی کی بات سن لی کہ مصیبت آئے گی تو آپ کتنا ڈر جاتی ہو، لیکن کیا ضروری ہے مصیبت آئے بھی، وہ تکلیف آئے بھی، وہ پریشانی آئے بھی؟ مجھے حیرت ہے کہ بندوں کی زبانی آپ مصیبت کی خبر سن کر کے اتنا لرزہ برندام ہو جاتی ہے اور اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، تم کتنی نادان ہو کہ بندوں کی زبان سے تم مصیبت کی داستان سن کر کے لرز جاتی ہو اور اس سے بچنے کی اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتی ہو۔ لیکن اللہ نے قرآن مقدس میں جو جہنم کے عذاب کا تذکرہ کیا ہے، جو گنہگاروں کو سزائیں دینے کا ذکر کیا ہے، جو قرآن مقدس کے اندر جرائم پیشہ لوگوں کو وعید سنائی گئی ہے، آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کیا کوشش کی ہے؟ آپ نے اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے کیا جتن کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ٹی وی پر بیٹھ کر جھوٹ بولنے والوں کی پیشین گوئیوں پر تو تم کو یقین ہے، لیکن اس رسول نے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنی مرضی سے کبھی بات کرتے ہی نہیں، بلکہ ان کی شان یہ ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ رسول جو کچھ کہتے ہیں زبان میرے رسول کی ہوتی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہوتا ہے۔ وہ حبیب پیارا جو اپنی مرضی سے کچھ کہتا ہی نہیں، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ رب العزت کی مرضی ہوتی ہے۔ ان اوباش اور ان گندے نکمے لوگوں کی، ٹی وی پہ بیٹھنے والوں کی پیشن گوئیوں سے تم اتنی لرزہ برندام ہو گئی، اور اس صادق و مصدوق رسول نے جو غیب کی خبریں دی ہے کہ عورتیں جب باریک اور پتلے لباس پہنے گی تو ان کو جہنم کے اندر ننگا لٹکایا جائے گا، ان کو اوندے منہ لٹکایا جائے گا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ٹی وی والوں کی پیشن گوئی سے ڈر گئی، لیکن اللہ کے رسول کے فرمان کو سن کر تم نے اپنے آپ کو اس عذاب سے بچانے کی کوشش نہیں کی، اپنے آپ کو ان جرائم سے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا بارہا اجتماعات کے اندر تمہیں یہ بتایا نہیں گیا ہے کہ جو عورتیں بالوں کی نمائش کرے گی ان کو بالوں کے ذریعے سے جہنم کی آگ کی بنی ہوئی کھوٹیوں میں لٹکا دیا جائے گا؟ عورتوں نے یہ نہیں سنا کہ جو عورتیں غیبت کرے گی ان کے منہ کو کتے کی طرح کر دیا جائے گا، ان کا منہ قیامت شکل ان کو دے دی جائے گی، ان کا منہ بدل دیا جائے گا، ادھر کی بات ادھر لگانے والی اور چگلی کرنے والی عورتوں کا منہ سور کی طرح کر دیا جائے گا۔ کیا خواتین اسلام کو یہ نہیں پتا؟ بارہا اجتماعات کے اندر یہ باتیں دہرائی جاتی ہے، جو عورتیں نماز کے لیے وقت نہیں نکالتی ان کی قبر کے اندر
कभी छिपकली को भेज की कब्र के अंदर, कभी कुत्तों को भेजकर उनकी कब्र के अंदर, कभी जानवरों को भेजकर उन औरतों को डराया जाएगा, उनको वहशतनाक सजाएं दी जाएगी। और ये किसी किस्से कहानी की बात नहीं, बल्कि अल्लाह के हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया के अंदर जो जिन चीजों से डरता होगा, जिन जानवरों से डरता होगा, उस बेनमाजी की कब्र में वो सारे जानवर भेज करके उसको डराया जाएगा। ऐ खातूने जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, मुझे बताओ तुमने दूसरों की मुसीबतों की पेशिन गोई का इतना ख्याल किया, लेकिन वो सादिक व मज़दूक नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके दुश्मन भी जिनके सच्चे होने की गवाही देते हैं, दुनिया उनकी सच्चाई की गवाही देता है, गवाही देती है, कुरान उनकी सच्चाई और सदाकत की गवाही देता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम की कनीजों, मेरे अल्लाह का इरशाद है, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। अल्लाह अकबर। जो लोग गुनाह करते हैं, जो लोग जराइम करते हैं, जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह उन पर पकड़ कसता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको इनकी पकड़ करता है और फिर उनको मुसीबतों में गिरफ्तार कर देता है। आज की औरतें मुसीबत में गिरफ्तार होती है तो कहती है पता नहीं मुझसे क्या गलती हो गई कि मैं मुसीबत में गिरफ्तार हो गई। मेरी बहन ये कहे कि तुझसे क्या गलती हुई, तू ये बात कह रही है, तुझसे कौन सी गलती नहीं हुई है, तू ये बात कहे। आज तो सारे जराइम तेरे अंदर मौजूद है मेरी बहन, सारे गुनाह तू कर रही है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने शौहर नामदार मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा के साथ गई तो देखा कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घुटनों में सर रख करके रो रहे हैं। हजरत सैयदा कायनात मलका फिरदौस से बरी सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा ने अपने बाबा जान से पूछा, या रसूल अल्लाह, आप इतने आंसू क्यों बहा रहे हैं, आपके रोने की वजह क्या है? तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेटी मैंने शबे मेराज जहन्नम का मुशाहिदा किया और मैंने मेरी उम्मत की औरतों को जहन्नम के जिस अजाब में देखा है उस अजाब को याद करके मैं रो रहा हूं। ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, मुझे हैरत है, मुझे अफसोस है कि अल्लाह के हबीब तुम्हारे ऊपर जो अजाब किया जाएगा उस अजाब को सोच सोच कर आंसू बहाए और तुम्हारी आंख में आंसू ना आए। तुमने तो अपनी आंखों को कभी सीरियल देखने के लिए वक्फ कर दिया है, कभी फिल्में देखने के लिए वक्फ कर दिया है। आखिरत का खौफ ही नहीं रहा, रब को मुंह दिखाने का खौफ ही नहीं रहा, रब की कटेरे में, इंसाफ के कटेरे में खड़े होने का खौफ ही नहीं रहा। ये तुम भूल चुकी हो कि कयामत के दिन अल्लाह को मुंह दिखाना है। जहन्नम के दहकते हुए शोलों के अंदर तुम्हें जलाया जाएगा, तुम्हारी कब्र के अंदर कीड़ों की बरसात होगी। हशरातुल अर्द तुम्हारे नर्म और नाजुक जिस्म को काट काट करके खाएंगे। ऐ मेरी बहन, ये तो बता वो ताकत तू अपने जिस्म में कहां से लाएगी कि तू तो आज अपने शौहर की डांट पर रोने लगती है। अगर तेरा शौहर तुझे जोर से डांट दे तो तेरी आंख में आंसू आते हैं। हाय मेरी बहन, तेरे नर्म दिल पर मैं क्या अर्ज करूं, तेरी नर्म दिली पर मैं कितना अफसोस करूं कि तेरे दिल की नरमी और नजाकत का आलम ये कि तेरा शौहर डांटे तो तू बर्दाश्त न कर सके, तू रो पड़े। तेरा बाप तुझे डांटे तो तू रो पड़े, तेरा भाई ऊंची आवाज से तुझे डांटे तो तू रो पड़े। ऐ मेरी बहन, जब तू अपने भाई की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती तो तुझ पर आग के कोड़े बरसाएंगे नमाज न पढ़ने की बुनियाद पर, तो तू उसको कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? आज तूने अपने दुपट्टों को मफलर बना लिया है। ऐ मेरी बहन, ये बता कि जब तू अपने भाई की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती, भाई के सख्त जुमले बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो जब जहन्नम के फरिश्ते दुपट्टों को मफलर बनाने की वजह से तुझे बालों के बल, तेरे बालों को जहन्नम की खूंटी से बांध देंगे और तुझे लटका दिया जाएगा, उस वक्त तू उस अजाब को कैसे बर्दाश्त कर सकेगी? अफसोस की बात यह है आज औरतें इतनी बेबाक हो गई
माई कोई गिबत कर रही है, कोई चुगली कर रही है, कोई मर्दों से नाजायज ताल्लुकात कायम कर रही है, कोई माज़अल्लाह अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, कोई आधे आस्तीन के कपड़े पहनकर इतरा रही है, कोई वलीमे में जा रही है तो सज धज कर, मस्जिद में जा रही है तो सज धज कर, होठों पर सूवर की चर्बी मिली हुई, लबों पर लाली सजाकर, अल्लाह अकबर, अपने जिस्म को मुअत्तर करके, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, तुमने सैयदा फातिमा का किरदार छोड़ करके तुमने कहा उन अदाकारों को अपने लिए आइडियल बना लिया जो जहन्नम का ईंधन बनने वाले हैं। अल्लाह अकबर, कल तक औरतों की सोच क्या थी, औरतों की फिक्र क्या थी, आज तुम्हारी सोच क्या है। एक मर्तबा हजरत बीबी राबिया बसरी की बारगाह में किसी ने बकरी का भुना हुआ गोश्त खाने के लिए पेश किया, कहा माई तेरी गुर्बत है, तेरी परेशानियां हैं। यानी परेशानी का मतलब ये कि बड़ी कस्म पुरसी में राबिया बसरी अपनी जिंदगी को गुजारती थी। आज मैं आपको थोड़ा सा पहले हजरत राबिया का तारुफ कराऊं। ये जो राबिया नाम है, राबिया का मतलब होता है चौथी नंबर की। दरअसल इनके बाप को 3 लड़कियां हो चुकी थी और चौथे नंबर पर ये पैदा हुई, इसलिए इनको राबिया कहा जाता है। और आपको पता है ये पैदाइशी तौर पर अल्लाह की बारगाह में मकबूल बंदी है। जब इनकी पैदाइश के वक्त इनके अम्मी को पैदा होने का वक्त बच्ची का करीब आया तो घर में कोई इंतजाम न था, तो जानती हैं आप क्या हुआ, उनके वालिद के ख्वाब में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया जाओ और जा करके फला रईस को मेरा नाम कहना और उससे कहना कि मेरे घर में जो है वो विलादत होने वाली है, वो मेरी मदद करे। उसके बाद राबिया पैदा हुई। हालांकि राबिया जो थी वो रंग के एतबार से सांवली थी, कद के एतबार से छोटा कद था। अल्लाह अकबर, फिर क्या हुआ, इनकी 3 बहनें इनको गुर्बत की वजह से छोड़कर चली गई और ये भी अकेली कहीं जा रही थी। तो एक जालिम ने इनको पकड़ा और पकड़ने के बाद इनको जो है वो कनीज बना लिया और चंद सिक्कों में इनको फरोख्त कर दिया, इनको बेच दिया। अल्लाह अकबर, जब बेच दिया तो फिर क्या हुआ, अल्लाह अल्लाह, एक मर्तबा ये रास्ते से जा रही थी, एक अजनबी मर्द इनको नजर भर करके देखने लगा। जरा दिल के कानों से सुनना, ऐ खातूने जन्नत की कनीजों, एक ऐसी औरत जो तन्हाई में जिंदगी गुजार रही है, जिनको चंद सिक्कों के एवज बेच दिया गया है, और एक मर्द जो है कनीज समझकर नजर भर करके देखता है, तो अल्लाह अकबर, मर्द ने जब टिकटिकी बांध करके एक मर्तबा राबिया को देखा तो राबिया पर उसकी ऐसी हैबत पड़ी, अल्लाह के खौफ व खशीयत की वजह से राबिया जमीन पे गिर गई कि एक मर्द ने मुझे टिकटिकी बांध कर देख लिया है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। इस तसव्वुर से राबिया जमीन पे गिर पड़ती है, हाथ टूट जाता है, तो अल्लाह से कहती है मेरे अल्लाह, मैं तो पहले ही कनीज थी, मैं तो पहले ही कमजोर थी, मैं तो पहले ही गुर्बत में जिंदगी गुजार रही थी और तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। तो अल्लाह अकबर, निदा आती है, राबिया तू अल्लाह के डर से गिर गई, अब तेरे अच्छे दिन आने वाले हैं, अल्लाह तेरे दिन पलट देगा, तुझे बहारों के दिन अता कर देगा। कुर्बान जाए, अगर मर्द एक नजर देख ले राबिया को तो राबिया खुदा के खौफ से जमीन पर गिर पड़ती है, हाथ टूट जाता है। बड़ी माजरत के साथ, मेरी बात बुरी लगे तो माफ कर देना, तुम मेरी बहनें हो, तुम कौम की बेटियां हो। अल्लाह अकबर, राबिया से इबरत हासिल करो। राबिया तो कोई एक मर्द एक मर्तबा देख ले तो जमीन पर गिर जाती अल्लाह के खौफ से। तुम तो अपने चेहरे की नुमाइश करती हो, तुम तो अपने बालों की नुमाइश करती हो। मर्द तके, आज फैशन है, मर्द तके, नया दौर है, मर्दों के साथ खिलखिला के बातें हो रही है, मर्दों के साथ कहे लगाए जा रहे हैं, मर्दों के साथ हंसी मजाक हो रही है। साली कभी बहनवई से हाथापाई कर रही है, देवर कभी भावत से हाथापाई कर रहा है। जालिमो, तुमने अल्लाह के कानून को तोड़ दिया, और जो कौम अल्लाह के कानून को तोड़ देती है अल्लाह उस कौम को तबाह व बर्बाद कर देता है, सफाई हस्ती से मिटा देता है। ये तुम्हारा
तुम्हारी जाहिलाना रसूमात होगी कि साली बहन भाई से मजाक कर सकती है, ये तुम्हारी गंदी रस्म होगी कि अल्लाह अकबर देवर भावत से हाथापाई कर सकता है। इस्लाम में कोई ऐसी रस्म नहीं है जिसमें कोई साली अपने बहन भाई से मजाक कर सके, कोई देवर अपनी भाभी से हाथापाई कर सके। मैं तुम्हें बताता हूं, अल्लाह अकबर, मौला अली की साली सैयदा उम्मे कुलसूम है, लेकिन कभी कोई साबित तो कर दे उम्मे कुलसूम और मौला अली का कभी बेपर्दा का भी आमना सामना। सैयद अमीन आपका अदना